अब हो गया, ठीक है. Okay, so last time what we discussed, let me take from there. So last time ये डिस्कस किया था क्वेरीज का, ठीक है. अब ये ओरेकल आर्किटेक्चर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ये स्क्रीन दिखाई दे रहा ना साफ? हाँ सर. ठीक है. और इसको और बड़ा करेंगे. पूरा फुल इस पे लाते हैं. स्टार्टिंग से Sir, will you discuss about DDL, DML, because the previous class you didn't discuss in brief. yeah, okay. Discuss in the upcoming classes. Yeah. First, we'll see this architecture. So this is because this is very important. Although this is more important for those who are DBS, database administrator. But for as a developer also, this concept is very important. So normally the architecture is very complex, but I have taken the small like picture so that like everything will be cleared to you guys. So as you can say, initially, this is the architecture. We have the data file, and at the top there is a user process. Then interacting with the user process is a server process, and server process is again doing interaction with the PGA. PGA is actually Program Global Area. So the upper part, all this part which is shown in the green arrow, is PGA, Program Global Area, and the lower part, which is like part of the memory structure, it is known as Shared Global Area, or we can also say as System Global Area. So it contains all the memory structures. Okay. So this is very important because like how Oracle works internally. For this, we have to know like how it is doing. So what is the sequence of a step which is happening? So let's start this. So initially, whenever a user requests some query or some commands, so for all like user process is created. Since Oracle is like very big multi-user database, so many users can connect and it will create a many user process. How many number of user is connected to Oracle at the same time? It will create that number of user process as soon as the user requests a command. So user will give command and it will pass to program global area, the next one. So program global area, yeah, which is like it stores the user information. Like whenever a user connect, it creates one session. So related to that particular user, it creates a program global area. So every user has one program global area. Okay, and I mean, yeah, obviously, it is interacting via the server process. So program global area is basically like suppose you guys are logging out. So for every one of you, there will be one program global area, which will be containing your session information. What is your session ID where? So whenever you connect to a server or whenever you connect to a database, it will allocate you one session ID. Okay. And that session ID is a part of the program global area. So PGA is also a memory area. Okay. And the session, it is specific to session to that particular session.
if suppose you log out and then again you log in, so it will create a new PGA for you, new program global area for you. It will allocate a new session to you. So this is how it, so from the PGA, when the user gives some issues, some statement like select star from EMP or select star from employee, तो अब ये करेगा क्या, it will go as arrow shows, it will check in shared SQL area. बेसिकली शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में वो पहले का देखेगा कि ये जो यूजर इसने क्वेरी एग्जीक्यूट किया, शेयर्ड एसक्यूएल एरिया बेसिकली स्टोर्स द एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ द प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड क्वेरीज. ओके, सो पहले जो सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई थी, पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, उसका एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो शेयर्ड एसक्यूएल एरिया के अंदर रहेगा. तो वो चेक करेगा, बेसिकली वो चेक करेगा कि पहले से एग्जीक्यूशन प्लान एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगर एग्जिस्ट करता है तो वहां से उठा लेगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो वो दोबारा से उसको पार्स करेगा. पूरा पार्सिंग का प्रोसेस होगा, क्वेरी को पार्स करेगा, उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, फिर वो स्टोर करेगा नया वाला, और फिर उसके बेसिस पे वो आउटपुट जनरेट करके देगा. ठीक है, तो यही प्रोसेस है. पहले वो देखेगा कि ऑलरेडी इट एग्जिस्ट और नॉट. if it exists then fine, and then in that case like performance will be good, we can quickly access the data because everything is ready, just we need to get the data. So suppose I mean, जैसे आप एक वो समझते हो कि आप किसी बेकरी में गए, आप कोई एक पर्टिकुलर टाइप का केक खरीदना हो, पहले से बना हुआ वहां पे, तो आपको वहां से दे देगा. अगर नहीं है वहां पे, आप नया रिक्वायरमेंट है जो ऑलरेडी उसके पास नहीं है, तो उसमें उसको बनाने में टाइम लगेगा. मान लो यही सिचुएशन मान लो, अगर वो क्वेरी नहीं है उसके अंदर एग्जिस्ट, तो वो अलग से उसके लिए सारा प्लान जनरेट करेगा, एग्जीक्यूशन प्लान देखेगा और बेस्ट पॉसिबल प्लान को लाके इसके अंदर रख देगा ताकि अगले बार के लिए वो इजी हो जाए. ठीक है, तो इसी तरह ये सारा एग्जीक्यूट होता है. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि वो एक ये है डेटाबेस बफर कैश. ठीक है, तो जो इसका जो आउटपुट होगा वो चेक करेगा कि आउटपुट डेटाबेस, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, आउटपुट जो है डेटाबेस बफर कैश के अंदर है या नहीं. ठीक है, अगर है तो यहाँ से फिर आउटपुट वो वापस सेंड कर देगा, जैसे ये एरो रेड वाला जा रहा डेटा से वापस वो उस यूजर को चला जाएगा. अगर नहीं है तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, जैसे ग्रीन एरो शो कर रहा, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक वहाँ डेटा फाइल से जो हार्ड डिस्क है वहां से लाके मेमोरी में लाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, फिर रिजल्ट वापस भेजेगा. तो ये एक प्रोसेस है. तो डेटाबेस बफर कैश के अंदर भी सिमिलर टाइप का सिस्टम है. वो चेक करेगा कि ऑलरेडी उसके अंदर है या नहीं पर्टिकुलर ब्लॉक, जो यूजर को जो डेटा चाहिए वो ऑलरेडी है या नहीं. वो अगर है तो वहां से ले लेगा, अगर नहीं है तो डेटा फाइल से फेच करके, ये ग्रीन वाला एरो है वहां से फेच करके वापस किसके अंदर लाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा. and the reason why it executes in the database buffer cache, because it is always faster to run in the memory. ये हार्ड डिस्क है, डेटा जो है ये हार्ड डिस्क है, और ये तुम्हारा SGA पूरा जो है ये मेमोरी स्ट्रक्चर है. तो मेमोरी में लाके एग्जीक्यूट करेगा तो इट इज ऑलवेज फास्टर. तो ओरेकल में यही मैकेनिज्म, हमेशा जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो मेमोरी में लाके एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, इतना everyone is clear on this? तो यही मेमोरी स्ट्रक्चर, जैसे ये PGA एक ऊपर वाला हो गया और SGA हो गया एक लार्ज नीचे वाला. इसके अंदर बहुत सारा मेमोरी स्ट्रक्चर, जैसे ये डेटाबेस बफर कैश हो गया, रीडोलॉग बफर हो गया, शेयर्ड एसक्यूएल एरिया जो मैंने बताया वो लाइब्रेरी कैश के अंदर आता है,
इसमें वो स्टोर्ड एसक्यूएल का एग्जीक्यूशन प्लान चेक करेगा कि पहले एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। डेटा डिक्शनरी कैश क्या करेगा कि वो देखेगा जैसे जो ऑब्जेक्ट का रिक्वेस्ट आया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो जैसे मैंने कल उस दिन बताया था कि वो ऑब्जेक्ट को पहले चेक करेगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो है नहीं, पहले सिंटेक्स चेक करेगा, तो सिंटेक्स भी इसी के अंदर लाइब्रेरी कैश में चेक होगा। डेटा डिक्शनरी जो है इसका काम है कि ऑब्जेक्ट चेक करेगा और उस ऑब्जेक्ट का प्रिविलेज चेक करेगा कि वो प्रिविलेज है या नहीं। ठीक है, ये उसके बाद एक अदर्स है, अदर्स इज नॉट रिक्वायर्ड है, आई मीन वो थोड़ा डेटाबेस डीबीए कंसेप्ट है। रिजल्ट कैश में क्या होता है कि एक और स्पेस उसने दे दिया ओरेकल ने कि तुम जो फ्रीक्वेंटली यूज तुम्हारा क्वेरी है ये रिजल्ट कैश के अंदर रखो। सपोज कोई क्वेरी हम डेली चलाते हैं तो वो इसके अंदर उसका रिजल्ट स्टोर करके रखिएगा, ताकि जो अगले बार कोई भी इश्यू करे, रिक्वेस्ट करे सेम क्वेरी, तो वो दोबारा पूरा प्रोसेस उसके नहीं प्रोसेस से नहीं गुजरे, सिर्फ रिजल्ट कैश में ऑलरेडी रखा हुआ उसको देके एग्जीक्यूट कर दे। तो रिजल्ट कैश का वही काम है। तो रिजल्ट कैश में क्या होगा कि एक फिक्स मेमोरी है। सपोज मेरे पास 25 फ्रीक्वेंट क्वेरी है, 25 हमने रिजल्ट कैश में रख दिया। अब अगला 26वां आ गया तो इसके पास तो एरिया फिक्स है। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि जो उसमें से लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब जो लेटेस्ट यूज नहीं हुआ है, वो पुराना हटा के नए वाले को उसके अंदर प्लेस कर देगा। सो लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम पे काम करके वो नया वाला इसके अंदर डाल देगा। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा शेयर्ड एसक्यूएल एरिया के अंदर भी। वो जब एग्जीक्यूशन प्लान कर चेक करेगा उसमें भी यही करेगा। फिर डेटाबेस बफर कैश में भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, इसमें भी अगर पूरा डेटाबेस बफर कैश फुल हो गया तो अब अगला डेटाबेस उसको लाना है, यूजर रिक्वेस्ट किया है, तो जो अगला जो इसमें से लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा उसको निकाल देगा और नए वाले को इसमें डाल के फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड। सो अब उसके बाद रीडो लॉग बफर है। रीडो लॉग बफर क्या है, जैसे कोई भी मेरे चेंजेस आया, इससे अपडेट ईएमपी जो है इम्प्लाई कोई है, मान लो कोई भी हो, शारिक इम्प्लाई एक है, शारिक की सैलरी 5000 है ना, हमको उसको अपडेट करके 10,000 करना। ठीक है, तो रीडो लॉग बफर क्या करेगा, 10,000 उसके लिए सारा रिक्वेस्ट आ गया, वो उसका डेटा उठा के अपडेट के लिए डेटाबेस बफर में डाल दिया। डेटाबेस बफर कैश में डालने से पहले वो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन था, जो शारिक का सैलरी 5000 था, वो रीडो लॉग बफर में डाल देगा, मतलब पहला इंफॉर्मेशन, अनडू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन 5000 सैलरी वाला जो है वो रीडो लॉग बफर के अंदर डाल देगा और डेटाबेस बफर कैश के अंदर वो लेटेस्ट अपडेट मारेगा। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे यूजर ने रोल बैक कर दिया, ठीक है, वो चाहता नहीं है कि नहीं ये गलत है, ये चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो वो चाहेगा कि मैं अनडू प्रीवियस इंफॉर्मेशन ले आऊं। तो अब यहाँ से रीडो लॉग इंफॉर्मेशन, रीडो लॉग में जो इंफॉर्मेशन था 5000 सैलरी वाला, वो वापस डेटाबेस बफर कैश में चला गया। ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए नहीं, रोल बैक किया, वापस वो पहले वाले स्टेटस में चला गया। ठीक है, अगर चाहिए होता तो क्या करेगा कि उस चेंज को अपडेट कर देगा। अगर मान लो 10,000 मुझे चाहिए तो उसको जैसे कमिट होगा तो कमिट क्या करेगा, बेसिकली डेटाबेस बफर के अंदर 10,000 सैलरी अपडेट कर देगा। ठीक है, अब रीडो लॉग के अंदर पुरानी फाइल रह गई, तो क्या करेगा, अब पूरा कमिट हो गया, फाइनल हो गया कि हाँ वी आर ओके। उसके बाद क्या करेगा कि एक प्रोसेस है डीबी राइटर। डीबी राइटर क्या करेगा कि डेटाबेस बफर कैश का जो अभी कमिट हुआ रिकॉर्ड्स हो
वो डेटा फाइल में जाके अपडेट कर देगा, फाइनल मतलब पक्का हो गया, रिकॉर्ड के अंदर अपडेट कर देगा। और रीडो लॉग बफर के अंदर जो 5000 वाला था, ये क्या करेगा कि रीडो लॉग फाइल में डाल देगा। ये जो रीडो लॉग फाइल यहाँ पे दिख रहा है डिस्क का, इसके अंदर डाल देगा रीडो लॉग बफर से, ठीक है। तो वो होगा, वो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है लॉग राइटर। लॉग राइटर यहाँ से रीडो लॉग बफर से लाके रीडो लॉग फाइल में डाल देगा। तो वो रीडो इंफॉर्मेशन भी पक्का हो गया, और डेटाबेस में भी डेटा फाइल में जो करंट इंफॉर्मेशन हो गया, और रीडो में ओल्ड इंफॉर्मेशन रहेगा रीडो लॉग में। अब रीडो लॉग में ओल्ड इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सपोज मान लो कुछ क्रैश हो गया या कुछ हो गया, तो डीबीए जो है वो सारी इंफॉर्मेशन बैकअप निकाल के रीडो लॉग फाइल से लाके दोबारा डेटाबेस में डाल देता है। तो इसमें टाइम भी रहता है, मतलब कब का डेटा, पुराना डेटा सपोज सिस्टम पूरा क्रैश हो गया, ठीक है, तो पुराना डेटा कब का दोबारा उसको रिट्रीव करना, तो 1 वीक का, 10 डेज का, 1 डेज का, 2 डेज का, ये सारा रीडो लॉग में टाइम स्टैम्प। एक होता है सिस्टम चेंज नंबर, उसमें होता है कि सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है कि किस दिन चेंज हुआ, कितना रिकॉर्ड हुआ। वो सिस्टम चेंज नंबर के बेसिस पे वो दोबारा जो है डीबीए जो क्या करेगा कि उसको रिक्वेस्ट आएगा कि नहीं मुझे 2 दिन का डेटा वापस चाहिए, तो पुराना डेटा जो है रीडो लॉग फाइल से लाके वापस इसमें डाल देगा डेटाबेस। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आर्किटेक्चर का यही है। तो जब भी अपडेट होगा या सिंगल सेलेक्ट होगा, सब में जो भी होगा ये प्रोसेस सेम रहेगा। पहले क्वेरी शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में देखेगा कि है या नहीं, अगर नहीं है तो दोबारा उसके लिए पूरा, अगर है तो वो सॉफ्ट पार्स करेगा, मतलब अगला स्टेप जाएगा और डेटाबेस देखेगा और डेटाबेस बफर कैश में चेक करेगा। अगर डेटाबेस बफर कैश में नहीं है तो फिर वो डेटा वहां से लाएगा, अगर है तो उसी को एग्जीक्यूट करके वापस लौटा देगा, ठीक है। और अपडेट में एक डिफरेंट थोड़ा है कि वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट तो डेटाबेस बफर ही कैश में करेगा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन रीडो लॉग फाइल में डाल देगा। यही डिफरेंस है अपडेट और सेलेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया। एनी क्वेश्चंस? तो ये कॉन्सेप्ट के लिए है, ये आपको मतलब जब भी परफॉर्मेंस इश्यू है आएगा, कुछ इश्यू आएगा, तो ये माइंड में रखना है कि ये कैसे काम करता है इंटरनली आर्किटेक्चर। और क्वेश्चन में अगर बोल दोगे तो बहुत अच्छा, वो इंटरव्यूअर विल बी वेरी हैप्पी विथ यू बिकॉज यू आर नोइंग ऑल द थिंग्स आर्किटेक्चर एंड ऑल। तो ये उसी का पार्ट है थोड़ा थोड़ा। डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी क्या है, वो पूरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो भी हम क्वेरी करते हैं वो सारा ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर रहता है और उसका परमिशंस। और रिजल्ट कैश जैसे बताया कि जो प्रीवियसली यूज्ड कॉमनली क्वेरीज है और वो स्टोर रहेगा, जैसे प्रीवियस लास्ट 10 और लास्ट 20। और लाइब्रेरी कैश जो है, लाइब्रेरी कैश के अंदर शेयर्ड एसक्यूएल एरिया हो, उसमें सारा चीज रहेगा, स्टोर्ड प्रोसीजर पैकेज वो सब। और एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो शेयर्ड एसक्यूएल एरिया के अंदर रहेगा। अदर एरियाज ये डीबीए के इसमें है, इसकी जरूरत नहीं है। तो यही सारा इसमें मैंने डिस्कस कर ही दिया। एसजीए, पीजीए हो गया, शेयर्ड एसक्यूएल हो गया, डेटाबेस बफर कैश, रीडो लॉग बफर कैश। ठीक है, क्लियर? अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडो लॉग बफर एंड रीडो लॉग फाइल? Reader log file is a memory, but reader log buffer is a program. No, redo log file is like disk, I mean hard disk which is used to store the old values, Redo log, and redo log redo buffer is log the file memory is area. can say Yeah, tell me. redo log buffer is a temporary memory. I say temporary memory. Yes. Redo log buffer and redo log file is a permanent memory.
हाँ, this is good. Yeah, correct. हाँ, ये टेम्परेरी, ये रीडोलॉग बफर इज अ टेम्परेरी मेमोरी स्ट्रक्चर और ये फाइल जो है ये परमानेंट डिस्क है. ठीक है. Next. ये वही है जो ऑलरेडी जैसे हम लोग डीएमएल रन करेंगे तो वो क्या होगा इंटरनली, वो सारा ये करके है कि इट विल चेक द शेयर्ड एसक्यूएल एरिया फॉर सिमिलर Between difference between a redo-log buffer and redo-log file. क्या. There is only one difference, temporary or permanent, between redo-log Yes, buffer and yes, redo-log yes, files. yes. Okay, sir. Temporary transaction or all undo information of the current transaction is done in move to the redo log file. Jैसे I said that like previous information like salary is equal to 5,000, that information is stored in redo log buffer, and once the change is committed, it is moved permanently to the redo log file. ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप है. When we run a DML code, like how it works is checks the shared SQL area for the similar statement to use, then checks the data dictionary whether the query is valid and whether the object exists, then checks the buffer cache and undo info segment for related data. देन एक चीज और, हाँ, लॉक कर देगा जिसपे अगर चेंज कर रहा ना वो ऑब्जेक्ट, तो चेंज करने से पहले उसको लॉक कर देगा. उसके बाद फाइनली एक बार लॉक जो हो गया तो फाइनली चेंज हो गया तो वो सारा राइट कर देगा उसमें फाइल में, परमानेंट फाइल में. जैसे डेटाबेस राइटर जो है राइट कर देगा डिस्क में डेटाबेस बफर कैश वाली इंफॉर्मेशन, और लॉग राइटर जो है वो राइट करेगा रीडो लॉग बफर वाली इंफॉर्मेशन रीडो लॉग फाइल में. ठीक है. एंड फाइनली वो सारा इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाएगा. And database writes the dirty block to the disk and unblocks the block. So dirty block किसी को कहा जाता है, जो जैसे डेटाबेस बफर कैश के अंदर जो इंफॉर्मेशन अपडेट हुआ ना वो उसको डर्टी ब्लॉक कहा जाता है. वो वापस जब ला के उसमें राइट कर देगा तो वहां पे ब्लॉक जो यूज किया था उसने रिलीज कर देगा. ये उसी का प्रोसेस है. वही है कि सिंटैक्स चेक, सिमेंटिक्स चेक, प्रिविलेज चेक, एलोकेट प्राइवेट एसक्यूएल एरिया. उसमें चेक करेगा कि शेयर्ड एसक्यूएल में है या नहीं. अगर है तो उसी को फिर आगे ले जाएगा, अगर नहीं है तो दोबारा से उसको पार्स करेगा, मतलब एलोकेट करेगा एसक्यूएल एरिया. फिर ऑप्टिमाइजर उस पे बेस्ट प्लान चलाएगा, चेक करेगा कि उस पे इंडेक्स है या नहीं, उसका उसमें फुल इंडेक्स स्कैन चलेगा या फुल टेबल स्कैन चलेगा. फुल टेबल स्कैन का मतलब जैसे उसमें कोई इंडेक्स नहीं, मेरे पास 20,000 का रिकॉर्ड है तो डेटाबेस क्या करेगा, अगर इंडेक्स नहीं है पहले चेक करेगा कि हमको चाहिए कि इम्प्लाई नंबर 10 का रिकॉर्ड 20,000 रिकॉर्ड में. तो अगर इंडेक्स है तो सीधे वो 20,000 वाले पॉइंटर पे जाएगा, वहां से फेच कर लेगा उस लोकेशन पे जहाँ पे वो स्टोर्ड है. अगर इंडेक्स नहीं है तो पूरा स्कैन करेगा पूरे टेबल को, और उसके बाद स्कैन करके उसमें से पिक करेगा. तो ऑब्वियसली पूरा अगर फुल टेबल स्कैन करेगा, पूरे को रीड कर रहा तो ज्यादा टाइम लगेगा. वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इंडेक्स में. ठीक है, ये तो उसी का है. अब आते हैं टेबल स्ट्रक्चर में. सो उस दिन टेबल हम लोग स्टार्ट कर दिया था ना कैसे. we have created one table उस दिन. I mean, एक मिनट, let me share this one.
उस दिन we have created that table, no? Last time some table Most we have likely. created. ठीक है, okay. उसी को फिर आगे ले चलते हैं. Now suppose simple table creation का, I mean table creation का तो structure पता है. Let's see एक example देते हैं. Simple है, create table, then table का नाम like suppose person table. Person, first में person ID होगा उसका यूनिक आइडेंटिफायर. जैसे सपोज पर्सन में एक ही नाम का चार बार आदमी है, तो उसका आईडी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ये 1 टॉम, उसकी सिटी क्या है, बैंगलोर, उसका फोन क्या है, कोई भी नंबर. ठीक है, ये तो हो गया क्रिएट. लेकिन यहाँ पे सब हमको डेटा टाइप देना पड़ेगा. ये तो वैल्यूज हो गया. ठीक है, तो ये हम लोग इंसर्ट करते टाइम देंगे. पहले उसका डेटा टाइप देना पड़ेगा. तो पहले उसका पर्सन आईडी, ये एट्रीब्यूट देना पड़ेगा. टेबल में पहले एट्रीब्यूट रहता है, तो पर्सन आईडी जो होगा इसका डेटा टाइप होगा नंबर. ठीक है, फिर इसमें नेम देते हैं, इसका डेटा टाइप varchar2. सिटी 2 of 50, then phone number, मोबाइल नंबर. ठीक है, ये सिंपली एक स्ट्रक्चर हो गया टेबल क्रिएशन. टेबल क्रिएटेड, यहाँ पे मैसेज आ गया. ठीक है, अब इसके अंदर हम क्वेरी करके देखेंगे. तो इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, बिकॉज अभी एम्प्टी टेबल है, अभी जस्ट क्रिएट हो गया. अब इसके अंदर डेटा देंगे. इंसर्ट करने का सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम पर्सन. उसके बाद दो तरीका है. एक तो अगर हम सारे का वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यूज कर देंगे. जितना भी मेरे पास चारों फील्ड है, चारों का डेटा इसमें सीधे डाल देंगे. लेकिन सपोज मान लो हम 3 ही का दे रहे हैं डेटा. Can you mute everyone? There's a extra voices coming. या प्लीज म्यूट. ओके गुड. हाँ ठीक है. तो अगर इसमें हमको सिर्फ 2 का देना है या 3 का देना, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट होता है, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज. पर्सन के बाद हम फील्ड नाम देंगे, फील्ड का नाम. तो पर्सन आईडी, तो जिस भी फील्ड का एंटर करना है उसका नाम देंगे पर्सन आईडी. सिर्फ मुझे 2 ही फील्ड का एंटर करना, वैल्यू. ठीक है, पर्सन आईडी और नेम का. यहाँ पे वैल्यूज 2 जैक. रो इंसर्टेड. अब इसको क्वेरी करेंगे तो select star from person. 2 वैल्यू आ गया इसका. ठीक है, पर्सन आईडी ये. ठीक है, अब मेरा एक कंडीशन है कि मैंने एक टेबल बना दिया. अब बार बार हमको पूरा फुल सिंटेक्स नहीं, इसी टेबल का एक कॉपी बनाना है. ठीक है, तो उसमें हम करेंगे, उसमें उसी टेबल को सिर्फ कॉपी करना. तो क्रिएट
table new person as select star from person। ठीक है, तो इससे जो जो भी पर्सन टेबल था उसी टाइप से एक न्यू पर्सन टेबल क्रिएट हो जाएगा और सेम डेटा भी उसमें सेम आ जाएगा। select star from new person। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मुझे कॉपी करना है नेम, लेकिन हम डेटा नहीं कॉपी करेंगे, उसका डेटा न्यू डेटा इंसर्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए सेम सिंटेक्स में where 1 is equal to 2। ठीक है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो ये पर्सन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये इसने ये एरर दिया। नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे नाम एक चेंज कर देंगे पर्सन 1। ठीक है, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर 1 इज इक्वल टू 2। ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको देखो, इसके स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके, ऐसे करके डिस्क्राइब करके भी हम उसको स्ट्रक्चर देख सकते हैं टेबल का। ये एसक्यूएल सर्वर में भी रहेगा, उसमें पॉपअप करके डिस्क्राइब पॉपअप करके आएगा। देखो ये पर्सन आईडी नंबर है, ये नेम, ये सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब इसका डेटा देखोगे तो उसमें डेटा नहीं रहेगा। डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्रिएट के टाइम में मैंने ये कंडीशन फॉल्स दिया था, 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये जो ये रन कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा इंटरनली, पहले ये पार्ट रन होगा और वो डायरेक्ट इसको असाइन हो जाएगा। तो इसको जब रन कर रहे हैं तो इसके अंदर डेटा नहीं आ रहा, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2 है, इसीलिए ये डेटा नहीं आया, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया पर्सन 1 में। ठीक है, इसी तरह हम लोग के पास इसमें जो है एक इम्प्लॉय टेबल है। इम्प्लॉय टेबल में ये बहुत सारा फील्ड्स है, इम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारा फील्ड है इसके अंदर। तो इसमें जो है जैसे इम्प्लॉय नंबर है, तो इम्प्लॉय नंबर ये स्मिथ है। ठीक है, स्मिथ का जॉब है क्लर्क, और उसका इसमें हिरार्की टाइप से दिया हुआ है। जैसे इसका मैनेजर जो है 7902, इसका मैनेजर है स्मिथ का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7902 कहाँ पे है, 7902 फॉर्ड है। ओके, तो स्मिथ का मैनेजर फॉर्ड है। स्मिथ क्या था, क्लर्क था। स्मिथ का मैनेजर फॉर्ड जो है ये एनालिस्ट है। ठीक है, अब इसका फॉर्ड का भी मैनेजर है 7566। तो देखेंगे 7566 है जोन्स, जोन्स है इसका मैनेजर। ठीक है, अब जोन्स का भी मैनेजर है 7839। तो 7839 में कौन है, किंग है। तो किंग जो है ये बॉस है सबका, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए इसका मैनेजर जो है नल है। तो इसीलिए ये टेबल जो है ना टीचिंग के लिए बेस्ट इसको ये किया जाता है, मतलब ये सारा इसका स्ट्रक्चर जो है समझने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका बेसिकली सिंटेक्स है, फील्ड, आप किसी फील्ड को सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट फील्ड नेम, ये नॉर्मल सिंटेक्स है आपका। फील्ड 1 नॉर्मली राइटिंग में यही होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं FLD1, FLD2,
FLD5 ऐसे कुछ भी दे सकते हो फ्रॉम टेबल नेम। ये जनरली आप कहीं भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसमें आपका जो नॉर्मल फील्ड है, जैसे यहाँ पे FLD1 में है आपका EMP नंबर हो गया, नंबर। FLD2 फील्ड 2 में ई नेम हो गया, एम्प्लॉय का नाम। FLD3 में उसका जॉब ले लो, क्या जॉब काम करता है। FLD4 में उसकी सैलरी ले लो, क्या सैलरी है। और फ्रॉम टेबल नेम में आपका जो टेबल है EMP, ये ले लो। तो यही सिंटेक्स यही है कि फील्ड नेम, तो नॉर्मली स्टार का मतलब होता है कि ऑल फील्ड। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली जब कोडिंग होता है कंपनीज में, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप फील्ड का नाम दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर टाइम सारा फील्ड यूज हो, और उससे आपका क्वेरी भी ऑप्टिमाइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद Excuse me. हाँ, When you executed the above query, that is where 1 equals to 2. Why didn't it executed? सॉरी, योर वॉइस इज वेरी लो, बोलिए दोबारा। Sir, the previous query हाँ, where 1 equals to 2, why हम्म। didn't is it executed? 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स किसी भी क्वेरी में यहाँ पे भी आप 1 इज इक्वल टू 2 दोगे, दैट मीन्स कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स। नो, 1 is equal to 2 means it is condition is false. So condition is false means it will not fetch any row. Yes, sir. Okay, sir. You got it? No, अगर इसी में तुम 1 is equal to 1 कर दोगे तो कंडीशन ट्रू है, it will return all the query. समझ गए? It's basically a logical type. या तो अगर इसमें कुछ भी So one सपोज question. 6 is greater than 5, It acts like conditional statement. हाँ, तो ये देखो ये भी ट्रू है, तो जितना भी ट्रू है उसके लिए सारा रो रिटर्न करेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बोलिए। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम बात करते हैं, आपसे कॉल करते हैं। हाँ So one question. हाँ हाँ, बोलो। So the query which we have executed, like select employee number, e-name, job, salary from employee. So why these attributes like employee name, employee number, and salary, these are in same color, and why job is in different color? Is there any reason behind? Same color means I did not get you. Okay. See, हाँ, good Actually, question, very good Yeah, question. employee number, employee name, हाँ, and salary is in black ये basically, text, हाँ, but good. job is in. यस, बेसिकली जॉब जो है ना वो रिजर्व वर्ड है ओरेकल के लिए। जैसे तुम देखो सेलेक्ट भी है, ये रिजर्व वर्ड है। जॉब भी Yes. रिजर्व वर्ड है, बिकॉज ओरेकल में भी जॉब होता है, ओरेकल जॉब। ये फ्रॉम जो है रिजर्व वर्ड है, वेयर रिजर्व वर्ड। ये EMP जो है ये तो टेबल है, तो इसमें कुछ भी रह सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये कलर डिफरेंट है। गुड क्वेश्चन, गुड ऑब्जर्वेशन। अब इसको जानते हो, इसमें टोड में हम लोग अगर करते हैं ना, तो बेसिकली ओरेकल का जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो ऐसे ही रहता है कि आप जो रिजर्व वर्ड है ना उसको अपर केस में लेना है। जैसे सेलेक्ट हो गया, या फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया। हम दिखाते हैं तुमको। Okay. कंट्रोल, देखो अभी मैंने इसको फॉर्मेट किया, ठीक है। टोड में इसमें फॉर्मेटिंग का एक ये है, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये देखो अपने आप ये है, कैपिटल अपर केस में आ गया। ये चूंकि ये ओरेकल का रिजर्व वर्ड था, लेकिन वो
जब क्वेरी के साथ यूज हो रहा तो ये इस वाली में आ रहा, ये फ्रॉम देखो, वेयर देखो, ठीक है ना, क्लियर? गुड। एक मिनट अजान हो रही, थोड़ा 2 मिनट रुक जाए। Yes, sir. हेलो। हाँ ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. या ओके। ये हो गया, ठीक है। Sir, तो इसी तरह से, हाँ sir, बोलो। how to configure the connectivity between Toad and Oracle database? हम्म, और टोड के लिए ना वी नीड टू हैव इंस्टॉल ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। So, sir, how do we practice that you have teach? सीक्वल डेवलपर में करो ना। SQL developer and just install the both. हम्म। That there is no any requirement to for connection between There is requirement means in SQL developer, no, you have to connect SQL with developer and Oracle 19C. ठीक, वो कल करा देंगे, ठीक है, कल कनेक्शन वाला देखेंगे, ठीक है। Okay, sir. वो कलेक्शन कल कनेक्शन का क्लास कर देंगे, देखेंगे, ठीक है। ये देखो तुम ओके, उससे पहले फिर वापस जाते हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब मान लो सपोज कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में हमको देखना है, जैसे जॉब है, तो ये साला इसमें कुछ रिपीटेड है, सेल्समैन रिपीटेड है, हमको चाहिए एक ही रिकॉर्ड चाहिए सेल्समैन का, या क्लर्क रिपीटेड है, एनालिस्ट रिपीटेड है, मैनेजर रिपीटेड है, टोटल 14 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट एक वर्ड होता है इसके अंदर, ये ओरेकल सपोर्ट करता है। डिस्टिंक्ट भी बेसिकली देखो, ये कलर चेंज हो गया ना, तो ये जो रिजर्व वर्ड है ओरेकल का। अब यहाँ पे है डुप्लीकेट्स नहीं आएगा, डुप्लीकेट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे तुम ई नेम सर दोगे, सर ये कलर्स ऑटोमेटिक ले लेगा डिफॉल्ट? हाँ क्या? कलर्स डिफॉल्ट ले लेगा सर ये? हाँ कलर, ये टोड की प्रॉपर्टी है, टोड उसको रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली। वो सीक्वल डेवलपर में भी हम देखेंगे। हम लोग तो ज्यादा ऑफिस में टोड ही यूज करते हैं, इसीलिए सीक्वल डेवलपर का उतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो ये ऑफिस का है ना, इसमें ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते, वो अपने ही वाले लैपटॉप में फिर करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट आ गया, डिस्टिंक्ट जॉब। लेकिन इसके साथ अगर हम ई नेम देंगे, ठीक है, तो ये पूरा 14 रिकॉर्ड क्यों आया, ये बताओ। क्योंकि डिस्टिंक्ट जो है वो एक ही रिकॉर्ड लेता है ना, लेकिन Sir, ये I पूरा can हम्म
because there is a repeated that is manager is multiple times insert in some field नहीं that नहीं, देखो बताते हैं, एक मिनट। ये डिस्टिंक्ट इसलिए दिया है, मतलब ये पूरा फुल इसलिए आ रहा रिपीटेड। बेसिकली अगर ये नहीं देते हैं तो जॉब का सिर्फ डिस्टिंक्ट आएगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं आ रहा, 5 रिकॉर्ड आ रहा, ठीक है। लेकिन हम ई नेम देंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, उसका यूनिकनेस चेक करेगा, दोनों दोनों रिकॉर्ड, दोनों फील्ड का। तो मैनेजर ब्लेक है और मैनेजर है। अब दूसरा जो है मैनेजर जो है वो क्लार्क और मैनेजर है, तो डिस अलग ही हुआ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यूनिक चेक करेगा, ठीक है। इसी तरह डीपीटी नंबर, पहले डिस्टिंक्ट हटा देते हैं। तो ये 14 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब इसमें हम इसमें ऑर्डर बाय देते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करना चाहें, हम अभी ऑर्डर में नहीं आ रहा ना डिपार्टमेंट, हम इसके डिपार्टमेंट के ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो ऑर्डर बाय डीपीटी नंबर, ठीक है। कामा, अब इसमें भी जॉब वाले में भी ऑर्डर बाय लगा देंगे। तो इसमें ये, तो पहले देखो, इसमें अब देखो रिपीटेड कहाँ है दोनों का। क्लर्क 10, मैनेजर 10, प्रेसिडेंट 10, एनालिस्ट 20। हाँ, तो एनालिस्ट वाले में दोनों रिपीटेड है, तो इसमें एक कम हो जाएगा। सेल्समैन में भी रिपीटेड है, 30, इसमें भी कम हो जाएगा, 4 रिपीटेड है। तो अब इसमें डिस्टिंक्ट, अभी 14 रिकॉर्ड्स आ रहा है, इसमें डिस्टिंक्ट लगाएंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा उसका डिस्टिंक्ट करेगा। तो ये 9 ही रिकॉर्ड रह गया, ठीक है। एनालिस्ट का था ज्यादा, उसका एक ही शो कर रहा है, और ये सेल्समैन का था ज्यादा, इसका एक ही शो कर रहा है, ठीक है। तो isn't there डिस्टिंक्ट a वो पूरा semicolon needed? कॉम्बिनेशन चेक करेगा। अगर एक फील्ड है तो एक ही फील्ड का डिस्टिंक्ट रहेगा, अगर 2 फील्ड है तो दोनों का, दोनों मिला के यूनिक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब where job is equal to, ये एक और चीज, ओरेकल का जो ये आई मीन सीक्वल जो लिख रहे हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है, कोई भी केस में लिख देंगे वो चलेगा, ठीक है। ये कोई भी अपर केस लोअर केस में लिख देंगे ये चलेगा। वेयर 2 बार हो गया। तो ये इसका इसका हमने डेटा फिल्टर किया जिसका जॉब मैनेजर है। तो इसमें अगर लोअर केस है या अपर केस है, कुछ भी है, अनलाइक यूनिक्स, ये पूरा अपर केस कर दिया तो ये चलेगा। अपर केस या लोअर केस सब एक बराबर है इसके लिए। अब यहाँ पे मैंने, अगर हमने लोअर केस किया तो ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा, हाँ? Yes, sir. अच्छा ठीक है। No, sir. Actually, it is written in code. हाँ, क्योंकि ये वैल्यू है, डेटा के अंदर वैल्यू, क्वेरी का सिंटेक्स नहीं है। तो वैल्यू जो स्टोर्ड है ईएमपी के अंदर, वो कैपिटल ही में वैल्यू अवेलेबल है उसके अंदर। तो वैल्यू के लिए ये केस सेंसिटिव है, बिकॉज वो तो सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू मैच करा रहा ना। अगर इस पे हम लोअर केस कर दें और फिर हम इस पे फंक्शन कर दें
वेयर अपर, जब इसको ट्रांसलेट कर देगा अपर में तो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ोगे, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अगर केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है ओरेकल लैंग्वेज, तो अगर हम लोअर केस में दे रहे हैं तो डेटा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद अब इसी पे आगे देखते हैं, वेयर जॉब इज इक्वल टू एंड, अब इसमें हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। सैलरी इज इक्वल टू 3000, नो रिकॉर्ड बिकॉज 3000 वाला कोई है ही नहीं इसमें। ठीक है, या तो उससे ज्यादा है, मतलब अलग फिगर अलग है। अगर हम इसका सैलरी ग्रेटर देन 2000 देंगे तो ये बेसिकली ये चेक कर रहा कि जो मैनेजर हो और जिसकी सैलरी 2000 से ज्यादा हो, तो ये तीनों आ गया। ठीक है, इसमें और कंडीशन लगा दे, एंड कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ग्रेटर देन 200। यहाँ पे कमीशन फील्ड भी दे देते हैं, सैलरी। तो इसका भी नहीं आया क्योंकि इसमें ये कर रहा है कि जॉब जिसका मैनेजर है, जिसकी सैलरी 2000 से ज्यादा हो और जिसका कमीशन इससे ज्यादा 200 से ज्यादा है। इसको कमेंट करके देखते हैं कि मेरे पास जितना रिकॉर्ड इसमें आ रहा है अबव दो कंडीशन से, उसका क्या स्टेटस है। तो इसका कमीशन सारे का नल है, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड कंडीशन मतलब सारा कंडीशन ट्रू रहना चाहिए, मतलब मैनेजर भी रहना चाहिए, सैलरी 2000 से ज्यादा भी रहना चाहिए, कमीशन 200 से ज्यादा भी रहना चाहिए। एंड के अगर हम इसके जगह पे हम और कंडीशन दे दें, ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें इसने ये दोनों तो लिया ही, जो मैनेजर है जिसकी सैलरी और करके उसके बाद जिसका जो है कमीशन 200 से ज्यादा है उसका भी डेटा लिया है। तो ये दोनों का डेटा आ गया इसमें, ये तीनों आ गया। इसमें सेल्समैन है, ये तीनों सेल्समैन है, इसका कमीशन 300 है, इसका 500 है, इसका 1400 है, बिकॉज ये और कंडीशन में हो गया। तो और में इसका अलग से चेक हो रहा। ठीक है, इसका अलग से चेक हो रहा है और ऊपर का दो अलग है, मतलब ये दोनों कंडीशन तो है ही, या जिसका कमीशन 2000 है। तो और कंडीशन में ये होता है, मतलब कोई एक भी कंडीशन सबको एक साथ चेक करेगा। ठीक है, ये समझ में आया और कंडीशन। जी हेलो, सर, एक्चुअली जी सर समझ ओके, में आया। ठीक है, अब एक और डेटा लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें ये देखो, तीनों एंड कंडीशन के लिए ये रिकॉर्ड ट्रू है, जिसका जॉब भी सेल्समैन है, सैलरी 1600 है, कमीशन 300 है। चार कंडीशन है इसमें, चारों के लिए ट्रू है, तो ये इसका एक रिकॉर्ड फिल्टर होके आ गया। ठीक है, इसमें अगर हम एक कंडीशन कमेंट कर देंगे तो ये जो है तीन के लिए चेक करेगा, तो थोड़ा तीन के लिए भी एक ही आ रहा, इसको भी कमेंट करेंगे। एक के लिए भी एक आ रहा क्योंकि ये सैलरी जो है ये 1600 में एक ही एम्प्लॉय है। ठीक है, अब
इसको भी कमेंट करेंगे तो सिर्फ सेल्समैन का जितना भी होगा वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है फिल्टर कंडीशन होता है, जैसे पहले सेलेक्ट हुआ, उसके बाद हमने फिल्टर कंडीशन चेक किया। तो फिल्टर कंडीशन में बहुत सारा मतलब एंड और कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें काम करेगा। कोई भी कंडीशन हम लेके चेक कर सकते हैं, बहुत सारा सिनेरियोज आएगा इसमें। ठीक है, इसमें अब ई नेम एक और देखते हैं। अब ये बताओ, हमको सारे एम्प्लॉयज का नाम लिखना जिसका नाम जो है ए से स्टार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पे ई नेम देखेंगे। ई नेम लाइक, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता, तो ए से स्टार्ट होता तो ए सिंगल कोट्स के अंदर देके उसके बाद परसेंटेज देंगे। तो ए तो लेगा, ए के बाद जो जितना भी जो अगर इसके अंदर अवेलेबल है उसको राइट कर लिख रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो मेरे पास अब यहाँ पे देखो एलन और एडम्स है, दोनों का नाम ए से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, इसी तरह से तो ये हो गया, ये सर्च हो गया। अब हमको देखना कि ये जो हो गया ये सर्च हो गया कि स्टार्टिंग पैटर्न क्या है। अब जिसका नाम एल से स्टार्ट होता है, अब ये देखना हुआ तो सिर्फ एलन आएगा। ठीक है, जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है, एम ए, मार्टिन, वाली एम से, तो मिलर और मार्टिन दोनों आ गया। ठीक है, अब हमको देखेंगे बीच का कैरेक्टर देखना है। सपोज कि जिसके नाम में मेरे को उसका पूरा, उस एम्प्लॉय का पूरा नाम नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उसके नाम में आर RTI है। ठीक है, तो वो सर्च करेंगे। ऐसे एम्प्लॉय जिसके नाम के अंदर RTI हो, तो यहाँ पे दोनों तरफ परसेंटेज लगा के RTI, तो ये बीच का जो कैरेक्टर है ना उसको स्कैन करेगा। तो ये मार्टिन आ गया। उस प्रीवियस वाले में था कि स्टार्टिंग कैरेक्टर चेक कर रहा था, अब बीच का जो कैरेक्टर है वो चेक करेगा। इसी तरह रेंज भी ले सकते हैं, जैसे where salary greater than ऐसे एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी 1600 से ज्यादा हो और 3000 से लेस हो, एंड तो इसमें दोनों बार सैलरी इसमें कंडीशन में लगेगा लेस देन 3000। तो ये उसके बीच का आ गया। ठीक है, जैसे सैलरी जिसकी 1600 और 3000 के बीच में है उसका सारा रिकॉर्ड आ गया, लेकिन वो जो 1600 वाला रिकॉर्ड है वो नहीं आया। ठीक है, और ये 3000 वाला रिकॉर्ड है वो नहीं आया। इसको करने के लिए सैलरी ग्रेटर और इक्वल और यहाँ पे सैलरी लेस और इक्वल कंडीशन डालना पड़ता है, तो ये दो रिकॉर्ड और भी उसमें ले लेगा। तो
3 रिकॉर्ड ले लिया, 1600 का एक रिकॉर्ड है और 3000 का 2 रिकॉर्ड है, तो टोटल 6 रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, और इसी को अगर हम एक और तरीका इसको करने का बिटवीन यूज करके, तो बिटवीन में ग्रेटर देन लेस देन नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ रेंज देना पड़ेगा, वेयर सैलरी बिटवीन 1600 एंड, दोबारा सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड 3000। तो इसमें फायदा ये है कि इसमें ये 1600 से ही स्टार्ट करेगा, 1600 से लेके 3000 तक, तो ये दोनों रिकॉर्ड भी वो ले लेगा, ये टोटल 6 रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारा, इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत सारा एसक्यूएल है, तो अब कल करेंगे नेक्स्ट, कल थोड़ा डेटाबेस का वो क्रिएशन फिर करके फिर इसमें आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, semicolon is not required. सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड इफ यू आर लाइक, तुम अगर अलग से कंट्रोल एंटर करके, इसमें बेसिकली सेमीकोलन टोड में दोनों ले लेता, विदाउट सेमीकोलन भी चल जाएगा, कंट्रोल एंटर करो, Okay, या sir. फिर एसक्यूएल सर्वर में सेमीकोलन रिक्वायर्ड रहता है, बिना उसके वो अलग से कंट्रोल एंटर से नहीं चलेगा, उसमें फिर सेलेक्ट करके रन करना पड़ेगा ऐसे। ये रन बटन है। तुम लोग एक और चीज कर सकते हो, एक चीज हम दिखाते हैं, लेट मी शेयर वन। यहाँ पे भी तुम, यहाँ पे ओरेकल का लाइव ओरेकल है अवेलेबल, वहां पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। गूगल, एक मिनट, लेट मी शेयर दिस वन। इसमें जाके अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड बना के इसमें एक वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और ये साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन की मुझे जरूरत है, लेकिन पहले तुम लोग को रिक्वेस्ट है वर्क स्पेस, पहले एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, उसके बाद फिर उसमें वर्क स्पेस बना के यूजर नेम पासवर्ड बना के इसमें एक बार ट्राई करो। इसमें सारा चीज प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, सारा डेटाबेस अवेलेबल रहेगा। अगर तुम्हारे पास इंस्टॉल भी नहीं हुआ तो फर्दर टाइम बिंग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करके देखो। मेरा जैसे है इसमें, पासवर्ड याद है कि नहीं, इनवैलिड क्रेडेंशियल, देख लो एक बार, हो जाएगा, इसमें ट्राई करना एक बार। ठीक है, एनी क्वेश्चन? No, sir, actually, कल दिन में ठीक है ना क्लास के लिए? सर तो टाइम पहले से बता दीजिए किस वक्त होगा, उसी हिसाब से रेडी रहेंगे। 12 बजे दिन में, ओके सर, ओके। ठीक है ना? ओके, ठीक, ठीक है। ओके। Okay, sir. Sir, notes of the class. हाँ, ये रिकॉर्डिंग हम भेज देते हैं, वो पिछले बार का मेरे सिस्टम पे रिकॉर्ड हुआ था, उसको थोड़ा शेयर करने पड़ेगा गूगल ड्राइव में, ये वाला क्लाउड में रिकॉर्ड हुआ, तो इसका लिंक अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। PPT. हाँ,
पीपीटी सर, ठीक है, पीपीटी भेज देंगे, अभी पूरा हुआ नहीं है, वो तुम देखोगे रिकॉर्डिंग में सारा चीज रहेगा। पीपीटी में तो कुछ है नहीं अभी, जस्ट ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट है, भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या क्या, सॉरी? फर्स्ट क्लास तो थोड़ा सा मिस भी हुआ था मेरा, हाँ, तो पीपीटी मिलेगा तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक लेट से ज्वाइन हुआ था। है, हाँ हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और सर ये जो डाउनलोड करने के लिए बताया था सर आपने, तो उसकी अभी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, मतलब नेक्स्ट वीक करेंगे इंस्टॉल तो कोई मुश्किल नहीं। अभी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ओरेकल अभी एक्चुअली वही है कि यहाँ पे मेरा तुम इंटरनेट VMware है ना, तो ज्यादा वर्चुअल मशीन करके इंस्टॉल करके नहीं कर सकते क्या विंडोज वर्जन? एक ही सिस्टम है क्या? वैसे तो कर सकते हैं, अब फिर उसके लिए भी पता नहीं। हाँ, एक ही सिस्टम है एक्चुअली, पहले था मल्टी सिस्टम, दोनों था, विंडोज और लिनक्स दोनों था, तो बाद में वो रीसेट किए थे सिस्टम से लिनक्स ही ऐसे, तो उसमें मैं डाउनलोड कर सकता हूँ एक्चुअली। है मसला ये है कि इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा पुअर है यहाँ पे गाँव में ना, तो दिल्ली जाएंगे तो ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करके डाउनलोड हो जाएगा मुश्किल नहीं। यहाँ पे मतलब वो टाइम दिखा रहा है और हम 10 आवर्स 10 घंटे लगेंगे डाउनलोड। ओह अच्छा, तो मीनवाइल प्रैक्टिस एपेक्स वाला यूज कर सकते हो, एपेक्स वाला ट्राई कर करो। सकते हैं वैसे। वैसे अभी तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं लगी मुझे, मे बी नेक्स्ट वीक से लगेगी शायद, हाँ ठीक है, हाँ, ओके, क्योंकि ये जो क्वेरीज आपने बताया इन सब के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा है पता ओके, फिलहाल जो चल रहा है हमारा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।